My dear students, I am Dr. Vibhakar. This class we will discuss about blood in general. Blood is fluid connective tissue. Blood क्या होता है बेटा? Blood एक fluid connective tissue है. Fluid connective tissue. Blood is a fluid connective tissue. It is mesodermal in origin. Blood mesodermal in origin होता है. Mesodermal in origin. It means it is formed by the embryonic mesodermal layer. ये embryonic mesodermal layer से यह blood बना हुआ है. And it is softest tissue of the body. Tissue of the body. Blood softest tissue, body का softest tissue है. It is slightly alkaline. Slightly alkaline in nature. Its pH measures from 7.35 to 7.45. इसका pH बेटा 7.35 से 7.45 होता है. It is approximately 1/13 part of body weight. Approximately 1/13 part of body weight. बॉडी का वेट जितना होता है उसका लगभग 1/13 पार्ट होता है ब्लड. एंड इट इज इन ए नॉर्मल पर्सन 5 to 7 liters of blood is present. एक साधारण आदमी में 5 से 7 लीटर ब्लड पाया जाता है. एक चीज और, it is 5 to 8 times more viscous. It is 5 to 8 times more viscous than the pure water. प्योर वाटर से यह 5 to 8 टाइम्स ज़्यादा विस्कस होता है. इसकी विस्कोसिटी प्योर वाटर से 5 से 8 गुना ज़्यादा होता है. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड इज स्पेसिफिक ग्रेविटी of blood is 1.05 to 1.06. तो ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.05 to 1.06 होता है. तो these are the few facts that we talk about blood. Blood is fluid connective tissue in nature. It is mesodermal in origin. Softest tissue, it is softest tissue of the body. Slightly alkaline in nature, that is pH is 7.35 to 7.45. It is approximately 1/13 part of body weight, and a normal person is having 5 to 7 liter of blood. Blood is 5 to 8 times more viscous than the pure water, and its specific gravity remains 1.05 to 1.06. Its specific gravity is very less. Okay, now we will discuss about the components of blood. Blood consists of 2 components. Blood के बेटा 2 components होते हैं. Number 1, that is ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. Blood consists of two components.
that is corpuscles and plasma. Corpuscles is about 45% and plasma is about 55%. ब्लड के दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. ब्लड के अंदर कुछ सेलुलर पार्ट जो होते हैं उनको कॉर्पसल्स बोलते हैं, नॉन सेलुलर पार्ट जो होते हैं उनको प्लाज्मा बोलते हैं. कॉर्पसल्स आर सेलुलर पार्ट, दीज आर सेलुलर पार्ट्स, सेलुलर पार्ट, एंड प्लाज्मा नॉन सेलुलर पार्ट. Cellular part is 45% and non-cellular part, that is plasma, is 55%. Now we will discuss about the corpuscles. Corpuscles is of three types. Corpuscles बेटा तीन प्रकार का होता है, that is WBC, RBC and third one that is the platelets. WBC is also known as leukocytes. RBC is known as erythrocytes. And platelets are also known as thrombocytes. These are WBC, red blood corpuscles, also known as WBC, white blood corpuscles, also known as leukocytes. RBC, red blood corpuscles, also known as erythrocytes. Platelets are also known as thrombocytes. Now we will discuss about the WBC. Before we come to WBC, we should also discuss about all these three parts together. WBC, RBC and platelets, these all together is known as PCV. Or packed cell volume. WBC, RBC और प्लेटलेट्स जितने भी कॉर्पसल्स ब्लड में हैं उन सभी को एक साथ मैं बोलता हूं PCV और पैक्ड सेल वॉल्यूम. PCV और पैक्ड सेल वॉल्यूम, इट इज आल्सो नोन एज हेमाटोक्राइट. It is also known as hematocrit. Packed cell volume PCV. It is also known as hematocrit. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे WBC के बारे में. WBC is responsible for the defense system of the body. WBC बॉडी के डिफेंस सिस्टम के लिए जिम्मेदार होता है. द नंबर ऑफ WBC का नंबर ऑफ WBC is 4,000 to 11,000 पर मिलीमीटर क्यूब. मतलब 1 मिलीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में, 1 मिलीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के डब्बे में अगर कोई डब्बा हो जिसका मेजरमेंट 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा, 1 मिलीमीटर ऊंचा, 1 मिलीमीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के डिब्बे में 4,000 to 11,000 WBC आता है. बहुत छोटा सा एक पिन पॉइंट WBC, बहुत छोटे से 1 मिलीमीटर क्यूब में 4,000 to 11,000 WBC होता है.
The number of WBC is between 4,000 to 11,000 per millimeter cube. If the number of WBC, अगर WBC का नंबर क्या होता है 4,000 कम वाला स्ट्रेंथ है, अगर ज्यादा होगा तो 11,000 पर मिलीमीटर क्यूब पर mm क्यूब। अगर WBC का मेजरमेंट 4,000 से कम हो, 1 मिलीमीटर क्यूब में WBC 4,000 से कम हो, इसका मतलब ये हो गया लेस देन 4,000। अगर 4,000 से कम हो, इफ WBC is less than 4,000, then such a condition is known as ल्यूकोसाइटोपिनिया। अगर WBC का नंबर WBC 4,000 से 11,000 के बीच में होता है, अगर WBC 4,000 से भी कम हो जाए तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। ल्यूकोसाइटोपिनिया, then such a condition is known as leukocytopenia. If the number of WBC means number of WBC, if number of WBC मैं लिख देता हूं, if number of WBC is more than 11,000, अगर WBC का नंबर 11,000 से ज्यादा है, then such a condition is known as, अगर WBC का नंबर 11,000 से ज्यादा है तो इस प्रकार के कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। then such a condition is known as ल्यूकोसाइटोसिस। अगर WBC का नंबर 4,000 से कम हो तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी बिकम्स वीक। 4,000 WBC रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को डिफेंस करने के लिए, रोगों से बचाने के लिए WBC रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर WBC का नंबर 4,000 से कम हो जाए तो रोगों से नहीं बचा पाएगा। इसका मतलब ये हो गया डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी इज वीक। अगर WBC का नंबर 4,000 से कम हो तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया। ऐसे कंडीशन को बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया। और ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी बिकम्स वीक। डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी इज वीक। ऐसे कंडीशन में बॉडी का डिफेंस सिस्टम क्या हो जाएगा, बॉडी का डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाएगा। WBC का नंबर 4,000 to 11,000 होता है, अगर 4,000 से कम हो जाए तो इस कंडीशन को बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया। ऐसे कंडीशन में बॉडी का डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाएगा। दूसरी बात, अगर WBC का नंबर 11,000 से ज्यादा हो, 4,000 to 11,000 होता है, अगर 11,000 से भी ज्यादा हो तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, ऐसे कंडीशन को, इसका मतलब ये हो गया WBC डिफेंस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। WBC का नंबर ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज एन इन्फेक्शन टू द बॉडी। समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। एक एरिया में 20 पुलिस वाले हैं। एक एरिया में जो है 4 से 11 पुलिस वाले हैं। 4 से 11, मैं उसको मान ले रहा हूं, 4 से 11 पुलिस वाले हैं, नॉर्मली प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहे हैं। नॉर्मली ये सब 4 से 11 पुलिस वाले हैं। और अगर कोई बवाल हो जाता है, बलवा हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में वहां पर उस एरिया में
पुलिस वालों की संख्या और भी ज़्यादा हो जाएगी और जो है दूसरी जगह से पुलिस वहाँ डिप्लॉय कर दिए जाएंगे तो वहाँ जो है 150 200 भी पुलिस वाले हो सकते हैं। अगर 150 200 पुलिस वाले हो जाए, 4 से 11 ही पुलिस वाले होते थे, 150 200 पुलिस वाले हो जाए, इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई बात है। इसी तरीके से अगर WBC का नंबर 11,000 है, 11,000 से बढ़ जाए, इसका मतलब है कि शरीर में कोई इन्फेक्शन है, शरीर में कोई इन्फेक्शन है। तो अगर WBC 11,000 से ज्यादा हो जाए, ऐसी कंडीशन को बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस एंड दिस शोज एनी इन्फेक्शन टू द बॉडी। इसका मतलब ये हो गया W 11,000 से ज्यादा है, ल्यूकोसाइटोसिस है, इसका मतलब है इन्फेक्शन इन बॉडी, देयर इज एन इन्फेक्शन इन बॉडी। अगर ज्यादा हो जाए, WBC का नंबर 11,000 से ज्यादा हो जाए, देन देयर इज दिस रिप्रेजेंट्स देयर इज एन इन्फेक्शन टू द बॉडी। अगर 11,000 से ज्यादा हो जाए तो यह रिप्रेजेंट करता है कि शरीर के अंदर बेटा कोई ना कोई इन्फेक्शन जरूर है। एक चीज और, इफ द नंबर ऑफ WBC इंक्रीजेस विदाउट एनी इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन भी ना हो, अगर कोई इन्फेक्शन ना हो, विदाउट एनी इन्फेक्शन WBC का नंबर बढ़ जाए, if the number of WBC increases without any infection, then such a condition is known as leukemia, then such a condition is known as leukemia, or leukemia is also known as blood cancer. अभी तक हम लोगों ने बात किया कि WBC का नंबर 4,000 to 11,000 के बीच में होता है। अगर WBC का नंबर 4,000 से कम हो जाए तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया। इसका मतलब ये हो गया ल्यूकोसाइटोपिनिया WBC डिफेंस सिस्टम के रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर 4,000 से कम हो जाए तो डिफेंस ल्यूकोसाइटोपिनिया बोलेंगे, डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गया। अगर 11,000 से ज्यादा हो जाए तो ऐसे कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं, और इसका मतलब हो गया कि शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन है, शरीर के अंदर इन्फेक्शन है तभी बढ़ा हुआ है, कोई बवाल हुआ है तभी पुलिस वालों का संख्या बढ़ा हुआ है। अगर बिना बवाल के ही पुलिस वालों की संख्या बढ़ जाए, बिना इन्फेक्शन के ही WBC का नंबर बढ़ जाए, if the number of WBC increases without any infection in the body, then such a condition is known as blood cancer or leukemia। अगर बिना इन्फेक्शन के ही शरीर के अंदर WBC की अमाउंट बढ़ जाए तो ऐसे कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकीमिया बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ WBC इन ए मिलीमीटर क्यूब, इन 1 मिलीमीटर क्यूब, टोटल नंबर ऑफ WBC इन 1 millimeter cube, in 1 millimeter cube, total number of WBC in 1 millimeter cube is known as TLC। 1 मिलीमीटर क्यूब में टोटल WBC कितना है उस टेस्ट को मैं बोलता हूं TLC, और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। जब मैं पैथोलॉजी में जाता हूँ, ब्लड निकालता हूँ, तो ब्लड को 1 मिलीमीटर क्यूब के पैच में रखते हैं, 1 मिलीमीटर क्यूब के पैच में रखते हैं, और उस पैच में टोटल WBC का नंबर को काउंट करते हैं, WBC टोटल कितना है। तो WBC के 1 मिलीमीटर क्यूब में WBC के टोटल नंबर को काउंट करने के प्रोसेस को बोलते हैं TLC, ऐसे टेस्ट को बोलते हैं TLC, और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ WBC।
is of two types. WBC is broadly categorized into two types. ये बहुत आसान है ये WBC को ब्रॉडली दो भागों में कैटेगराइज किया गया है. पहला ग्रैन्युलेटेड और दूसरा एग्रैन्युलेटेड. WBC को ब्रॉडली दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ग्रैन्युलेटेड एंड एग्रैन्युलेटेड. ऐसा WBC जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, ऐसा WBC जिसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, ऐसे WBC को मैं बोलता हूं ग्रैन्युलेटेड. All those WBC which consist of smaller granules are known as granulated, and all those WBC that do not consist of any granules, that lacks granules, is known as agranulated. WBC बेटा दो प्रकार का होता है, पहला ग्रैन्युलेटेड, दूसरा एग्रैन्युलेटेड. अगर WBC में ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, कण पाए जा रहे हैं, तो ऐसे WBC को मैं बोलता हूँ ग्रैन्युलेटेड. और अगर WBC में ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जा रहे हैं, ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट, देन सच टाइप ऑफ WBC आर नोन एज agranulated. Now we will discuss about the granulated. Granulated is of three types. Granulated WBC is of three types. That is basophil, acidophil, and neutrophils. Basophil, acidophil, and neutrophils. Basophils are 0.5%. 0.5%. Acidophils or eosinophils. Acidophils are also known as eosinophils. Acidophils का दूसरा नाम eosinophils भी होता है. Acidophils are 3% of total WBC. 3% of total WBC, and neutrophils are 66.5%. 0.5%. Thus, these acidophil, basophils, and neutrophils granulated WBC are total 70%. 70%. And now we will discuss about agranulated. Agranulated is of two types. एग्रैन्युलेटेड दो प्रकार का होता है. कौन कौन सा हो जाएगा? मोनोसाइट एंड मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. एग्रैन्युलेटेड बेटा दो प्रकार का होता है, पहला मोनोसाइट्स, दूसरा लिम्फोसाइट्स. मोनोसाइट्स आर 3%, मोनोसाइट्स 3% होता है, एंड लिम्फोसाइट्स आर 27%. Thus these comes total, that is 30%. WBC का 70% ग्रैन्युलेटेड होता है, WBC का 70% ग्रैन्युलेटेड होता है और 30% एग्रैन्युलेटेड होता है. इसको याद करने का एक फार्मूला मैं और बताऊंगा आपको. बेसोफिल, एसिडोफिल, ग्रैन्युलेटेड तीन प्रकार का होता है. ग्रैन्युलेटेड WBCs are three types, that is बेसोफिल, एसिडोफिल एंड न्यूट्रोफिल. बेसोफिल, एसिडोफिल एंड न्यूट्रोफिल. इसको याद करने का फार्मूला है इसका याद करने का फार्मूला है बेंजी, बेंजी. तो बहन जी से आप याद रहेंगे बेसोफिल, एसिडोफिल एंड न्यूट्रोफिल. बेसोफिल, एसिडोफिल एंड न्यूट्रोफिल आर ग्रैन्युलेटेड. बेसोफिल, एसिडोफिल और न्यूट्रोफिल जी ग्रैन्युलेटेड. बेसोफिल, एसिडोफिल एंड न्यूट्रोफिल आर ग्रैन्युलेटेड. याद रहेगा. दूसरा फार्मूला है, इसको याद रखने का फार्मूला
ए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ नहीं है, यहाँ मोनोसाइट एम, मोनोसाइट एल, लिम्फोसाइट आर ए ग्रैनुलेटेड, एम एल ए, monocyte and lymphocytes are agranulated, ben G, basophil, acidophil and neutrophil, ben G, they are granulated. This is all about the components of WBC. WBC के components के बारे में बात किया। WBC दो प्रकार की होते हैं, ग्रैनुलेटेड एंड ए ग्रैनुलेटेड। ग्रैनुलेटेड ben G और ए ग्रैनुलेटेड MLA, monocyte and lymphocytes. Now we will discuss about each of them separately. अब हम इन सभी के बारे में, बेसोफिल, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट, इन सभी के बारे में अलग अलग से बात करेंगे। एसिडोफिल इज आल्सो नोन एज स्नोफिल्स। एसिडोफिल्स का दूसरा नाम स्नोफिल्स भी होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ईच ऑफ देम सेपरेटली। थैंक यू।